Hello everyone, last lecture, that is topic number 14, basic principles of organic chemistry. We are starting the introduction part, and in this introduction part we are already completed C1 to C10 one table, then C11 to C20 another table, as well as we are already completed is nothing but the types of carbon atom as well as types of hydrogen atom. In this lecture we are last lecture we are completed this point is nothing but the what is mean by primary, secondary, tertiary and quaternary carbon atom. This primary carbon atom means the carbon atom is attached to another only one carbon atom or non-carbon atom is called as primary carbon atom. What is mean by secondary carbon atom? These are the carbon atom attached to another two other carbon atom is called secondary carbon atom. Then tertiary carbon atom, these are the carbon atom attached to another three other carbon atom is called tertiary carbon atom. And last one, the type is nothing but the quaternary carbon atom. These are the carbon atom attached to another four other carbon atom is called quaternary carbon atom. Same definition हम लोगों को types of hydrogen atom देख रहे हैं. These hydrogen atom having three types, that is primary hydrogen atom, secondary hydrogen atom and tertiary. What do you mean by primary hydrogen atom? That is these are the hydrogen atom attached to primary carbon atom is called primary hydrogen atom. These are the hydrogen atom attached to secondary carbon atom is called secondary hydrogen atom, and these are the hydrogen atom attached to tertiary carbon atom is called tertiary hydrogen atom. Means these are the primary, secondary, tertiary and quaternary carbon atom as well as primary, second and tertiary hydrogen atom according to state board level as well as NCERT level. यानी उसके ऊपर हम लोगों ने CET, NEET एंड JEE लेवल का एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था. ये ऑलरेडी कंप्लीटेड पार्ट है. अभी हम लोगों को सेम पॉइंट दैट इज इंट्रोडक्शन के पॉइंट में सेम पॉइंट में एक नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करना है जो हम लोगों के लिए खूब इंपॉर्टेंस है बिकॉज ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इज 11, 12 के लिए इंपॉर्टेंट है. एज वेल एज मैं आप लोगों को और कुछ अलग से ग्रुप सिखाऊंगा जो अकॉर्डिंग टू CET लेवल, नीट लेवल, JEE लेवल में इंपॉर्टेंस है. मैं टोटल अभी कम से कम 13 ग्रुप अल्काइल के सिखाऊंगा और अनदर जो ग्रुप्स है दैट इज 7 ग्रुप, टोटल 20 ग्रुप्स में आप लोगों को सिखाऊंगा. ये 20 ग्रुप आप लोगों को 11, 12 एज वेल एज CET, नीट एंड JEE लेवल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है. यानी कि टोटल अगले 2 साल के जो प्रॉब्लम आप लोगों को आएंगे रिएक्शन में वो सब कंप्लीशन करने के लिए अभी आप लोगों को ये वाले जो अल्काइल ग्रुप्स है आप लोगों को पता होना जरूरी है. इसके लिए मैंने एक जो टोटल अल्काइल ग्रुप्स है एक साथ मैंने लिए हुए हैं. ये एक बार आप लोगों को समझ में आ गया तो पूरे 11th 12th स्टैंडर्ड में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. आराम से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस एज वेल एज रिएक्शन कंप्लीशन हो जाएगी. ओके, तो हम लोग जो पॉइंट लेने वाला इज नथिंग बट द अल्काइल ग्रुप. अब दिस अल्काइल ग्रुप हम लोगों को इधर डेफिनेशन की अभी जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट कौन सा चाहिए क्योंकि हम लोगों का इंट्रोडक्शन का पार्ट चले. तो इसमें अल्काइल ग्रुप मींस क्या है? इट इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम अल्केन. अभी देख लीजिए आप लोगों को 2 मिनट में समझ में आ जाएगा. मैंने इधर अल्केन लिख दिया ALKNE. ओके, दिस एनी रिप्लेस बाय YL. ALK कॉमन है, इसमें भी कॉमन है. एनी रिप्लेस बाय Y इज नथिंग बट द अल्काइल. मींस अल्काइल ग्रुप्स आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम अल्केन. ओके, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें से ले लिया मीथेन. अल्केन में फर्स्ट कार्बन एटम इज नथिंग बट द मीथेन. C1 कार्बन एटम इज नथिंग बट द मीथेन. सो एनी रिप्लेस बाय YL मींस मीथ, METH. अभी एनी रिप्लेस बाय YL, so this is nothing but the methyl group is nothing but the alkyl group. Means first carbon atom that is methane is converted into methyl. Means methyl alkyl group are mainly obtained from first carbon atom that is methane. Same in case of 2 carbon atom that is ethane. So ethyl is mainly obtained from ethane. Propyl is mainly obtained from propane. Butyl is mainly obtained from butane and pentyl is mainly obtained from pentane because any replaced by YL that is alkyl group. मतलब दोनों में क्या डिफरेंट है? मीथेन और मिथाइल में एक्चुअली क्या डिफरेंट है वो हम लोगों को देखना है. एक बार ये समझ में आ गया ना तो ये सारे ग्रुप आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा. मीथेन आप सबको मालूम है CH4 इज नथिंग बट द मीथेन बिकॉज ओनली 1 कार्बन एटम. मीन्स इसी तरह से जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. मीथेन मीन्स C1 कार्बन एटम.
Okay, C1 carbon atom. C1 means only one carbon atom, and this carbon atom having 4 valency. So ये वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसके पास अभी कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, तो 4 हाइड्रोजन की जरूरत है. इसका हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH4 मीथेन. अभी इस मीथेन में से मैंने क्या कर दिया, CH3 और एक हाइड्रोजन अलग से निकाल दिया. ओके, यानी कि CH4 है, ये भी मीथेन है, ये भी मीथेन ही है, ओनली वन कार्बन एटम मीथेन. अभी इसमें से एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिया, मैंने हाइड्रोजन एक रिप्लेस कर दिया, तो इधर आ जाएगा एक फ्री बॉन्ड. ओके, दिस फ्री बॉन्ड विथ वन कार्बन एटम इज नथिंग बट द मिथाइल. फाइन, मिथाइल अल्काइल ग्रुप, इसे कहते हैं अल्काइल ग्रुप, बिकॉज ओनली वन कार्बन एटम हैविंग फ्री बॉन्ड इज नथिंग बट द अल्काइल ग्रुप. मुझे ओनली वन कार्बन एटम हैविंग फ्री बॉन्ड इज नथिंग बट द मिथाइल ग्रुप. एंड जिस स्ट्रक्चर में हम लोगों को फ्री बॉन्ड दिखेंगे, फ्री बॉन्ड इज नथिंग बट द अल्काइल ग्रुप, मींस ओनली वन कार्बन एटम हैविंग फ्री बॉन्ड इज नथिंग बट द मिथाइल. 2 carbon atom having free bond is nothing but the ethyl. 3 carbon atom having free bond is nothing but the propyl. 4 carbon atom having free bond is nothing but the butyl, and 5 carbon atom having free bond is nothing but the पेंटाइल. इसी तरह से हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स है. फॉर एग्जांपल मिथाइल है, इट इज मेनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम मीथेन. इथाइल है, इट इज मेनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेन. प्रोपाइल है, इट इज मेनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपेन. देन ब्यूटाइल, देन पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, octyl, nonyl and decyl. These are the different types of alkyl groups are mainly obtained from alkane, that is methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane and decane. These are the very simple one. But in case of alkane, this carbon carbon having a single bond, but these are alkyl group having always single bond double bond, वो अलग सी बात है, लेकिन always present as a free bond is nothing but the alkyl group. इसी तरह से हम लोगों को ये वाले 5 जो alkyl groups है ये हम लोगों को completion करना है. These are the very important one according to state board level, NCERT level. ओके इतनी अभी तक देखा जाए तो स्टेट बोर्ड में इसके अलावा और कुछ अलग सा कुछ अल्काइल ग्रुप अभी तक आया नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है. और इसके साथ हम लोगों को कुछ अलग से अल्काइल ग्रुप्स, अलग से ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप नहीं है, अलग से ग्रुप्स देखने हैं जो सीईटी नीट एंड जेईई लेवल के लिए इंपॉर्टेंट. पहले हम लोगों को अल्काइल ग्रुप कंप्लीशन करना है. इसको कहते हैं मिथाइल. सो इट इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम, कौन बोलेगा इसको, मेनली ऑब्टेन फ्रॉम मीथेन, because methyl, Yl is replaced by Ane, so it is mainly obtained from methane. But methyl means only one carbon atom. ध्यान में दीजिए, methyl means only one carbon atom. Okay, only one carbon atom. अभी Ane लिखा होता तो इसमें कुछ जरूरत न होती फ्री बॉन्ड की, लेकिन इधर Yl लिखा हुआ है, Yl, so इसका मतलब having free bond, that is alkyl group, having free bond. मैंने इधर एक free bond ऑलरेडी लिख दिया. अभी इसकी वैलेंसी मुझे कंप्लीट करनी है. वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसके पास एक ऑलरेडी बॉन्ड है. कार्बन की वैलेंसी तो 4 रहती है, तो इसके ऑलरेडी और कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट. इट इज नथिंग बट द बॉन्ड CH3. इट इज ऑल्सो इसी तरह से भी लिखा जा सकता है, बॉन्ड CH3 इज नथिंग बट द मिथाइल ग्रुप, means having one carbon atom with free bond is nothing but the methyl group. It is mainly obtained from methane. Okay. Second, ethyl group. What does it mean by ethyl? Ethyl is mainly obtained from ethane, and ethane means 2 carbon atom. Ethane means 2 carbon atom. Ethyl is mainly obtained from ethane and is 2 carbon atom. अभी इसके ऊपर मुझे Yl में कन्वर्शन करना है. Yl मीन्स अल्काइल ग्रुप में कन्वर्शन करना है, तो हैविंग फ्री बॉन्ड, तो मैंने इधर क्या लिख दिया, एक फ्री बॉन्ड एक्स्ट्रा लिख दिया. तो अभी इसका कन्वर्शन होगा इथाइल में. अभी इथाइल के लिए इसकी वैलेंसी कंप्लीट करना जरूरी है. अभी वैलेंसी के लिए इसके पास एक ऑलरेडी वैलेंसी है, तो इस अनदर वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को और चाहिए, दैट इज 3 हाइड्रोजन एटम इज रिक्वायर्ड, दैट इज CH3. अभी इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें और कितनी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके पास एक वैलेंसी 2, टोटल 2 वैलेंसी अवेलेबल है, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है. तो इधर लिखना है हम लोगों को 2, दैट इज बॉन्ड CH2 CH3. अभी इसको मैं इसी तरह से भी लिख सकता हूं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, इट इज नथिंग बट द इथाइल. और इसको इसी तरह से भी और लिख सकते हैं, C2H5 फ्री बॉन्ड C2H5, इसको इसी तरह से भी लिखा जा सकता है. मीन्स दिस आर द मोलिकुलर फॉर्मूला.
means bond CH2CH3 as well as bond C2H5 is nothing but the ethyl. Then propyl it is mainly obtained from propane having 3 carbon atom. पहले मैं 3 carbon atom लिख देता हूँ, 1 2 3. ओके इस 3 कार्बन एटम के हम लोगों को देखना है. प्रोपाइल के जैसे मिथाइल में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, प्रोपाइल इथाइल के ओनली वन स्ट्रक्चर बन सकता है, दैट इज मिथाइल 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 इथाइल. उसी तरह प्रोपाइल के हम लोगों को 2 स्ट्रक्चर बनते हैं. तो मैं इधर 2 स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, 1 2 3. ओके अभी इसमें अगर मैंने इसी तरह से लिख दिया, इज नथिंग बट द अल्केन, इसका कन्वर्जन अल्केन दैट इज प्रोपेन प्रोपेन. बट इसको कन्वर्जन करना है वायल दैट इज अल्काइल ग्रुप में प्रोपाइल. तो हैविंग फ्री बॉन्ड, अगर मैंने एक फ्री बॉन्ड इधर लिख दिया और अनदर फ्री बॉन्ड मैंने इधर लिख दिया, 2 जगह हम लोग फ्री बॉन्ड लिख सकते हैं. तीसरी जगह आप लोग ऐसे आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ए फ्री बॉन्ड मैंने इधर लिख दिया तो सेम ही है, इधर लिख दिया तो फर्स्ट नंबर इधर से आएगा, इधर लिख दिया तो फर्स्ट नंबर इधर आएगा, इसका भी नाम सेम रहेगा और इसका नाम, इसलिए इधर मैंने नहीं लिखा, डायरेक्टली इधर लिखा है. इसके 2 क्या हो गए क्लास हो गए यानी प्रोपाइल में. अभी इसको और इसको क्या बोलते हैं, अभी पहले इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं. वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसके पास ऑलरेडी 1 वैलेंसी है, तो अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3. इसकी वैलेंसी ऑलरेडी 1 2 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसको CH2. इसके पास 2 वैलेंसी है, तो टोटल वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कार्बन के लिए इसकी वैलेंसी भी 2 ही रहेगी. अभी इसके पास जाएंगे, इसके पास देखा जाएगा तो कार्बन के पास 1 वैलेंसी ऑलरेडी है, तो हाउ मेनी हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वैलेंसी, तो 3. इसके पास कंप्लीशन करने के लिए 3 और इसके पास 1 2 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी आपके पास है, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपको 1 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज 1 अल्काइल ग्रुप, सेकेंड अल्काइल ग्रुप. टोटल 3 कार्बन एटम हैविंग फ्री बॉन्ड इज नथिंग बट द प्रोपाइल. टोटल 3 कार्बन एटम हैविंग फ्री बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोपाइल. मतलब इसको भी प्रोपाइल इसको भी प्रोपाइल नहीं बोल सकते, कुछ तो अलग नाम लिखना पड़ेगा. तो इसको कहते हैं एन प्रोपाइल, इसको कहते हैं सेकेंडरी और आइसो प्रोपाइल. इसको कहेंगे एन प्रोपाइल और इसको कहेंगे सेकेंडरी और आइसोप्रोपाइल. अभी इसको सेकेंडरी और आइसो कैसे कहेंगे, इसको एन मीन्स क्या है, एन मीन्स व्हेन फ्री बॉन्ड अटैच टू द प्राइमरी कार्बन एटम इज कॉल्ड एन प्रोपाइल. Do not have a branching, having a straight chain. N means normal chain, do not have a branching. So N propyl, 3 carbon atom having free bond and this free bond attached to the primary carbon atom, so it's called N propyl because do not have a branching. Second, this free bond attached to the secondary carbon atom because this carbon atom attached only one primary, this carbon attached another 2 other, so it's secondary. So this free bond attached to the secondary carbon atom, so it's called secondary or isopropyl. Means 3 carbon atom having free bond is called propyl, but this free bond attached to secondary carbon atom, so it's called secondary or isopropyl. ओके these are the 2 types. नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो ब्यूटाइल. ब्यूटाइल के हम लोगों को कितने टाइप्स हैं, तो ब्यूटाइल के टोटल हम लोगों को 4 टाइप्स है, वो हम लोगों को देखना है. 4 टाइप्स देखने के लिए 1 2 3 4 these are the first type, 1 2 3 4 these are the second type, 1 2 3 4 these are the third type and 1 2 3 4 these are the 4th type. ओके 4 टाइप्स हम लोगों को लिखना है. इस 4 टाइप में अगर देखा जाए तो आपको समझ में आ जाएगा. ब्यूटाइल की वैलेंसी हम लोगों अभी इसके अल्केन में अभी जो भी रहे ब्यूटेन 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 ब्यूटेन, क्योंकि कोई भी फ्री बॉन्ड इधर नहीं है. एक बार फ्री बॉन्ड अटैच कर दिया तो इसके ऊपर आप लोगों का अभी मैंने इसी तरह से स्ट्रक्चर लिखे, तो उसके कन्वर्शन कैसे करेंगे. फर्स्ट इसको अगर फ्री बॉन्ड मैंने इधर लिख दिया, सेकेंड का फ्री बॉन्ड मैंने इधर लिख दिया, थर्ड अभी इधर लिख दिया तो सेम हो जाएगा, इधर लिख दिया तो भी सेम हो जाएगा. तो थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं और इसको इसी तरह से लिखता हूं, ए वाला कार्बन एटम और ए वाला कार्बन एटम, ये तो इधर फ्री बॉन्ड हो गया. ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, इधर क्या करता हूं, इधर फ्री बॉन्ड एज इट इज लिख देता हूं और इधर एक कार्बन एटम लिखता हूं. तो इसके 4 टाइप्स हो गए. अभी किसी तरह से हो गए, देखो फ्री बॉन्ड अटैच टू 4 कार्बन एटम and this free bond attached to the primary carbon atom means 4 carbon atom having free bond and this free bond attached to the primary carbon atom do not have a branching is called as N-butyl. This 4 carbon atom having free bond
and this free bond attached to the secondary carbon atom, so is called as secondary, and this functional group is nothing but the butyl, so is called as secondary butyl. This 4 carbon atom having free bond is butyl, but free bond attached to the tertiary carbon atom, because this carbon atom attached to another 3 other, so tertiary carbon atom, so is called as tertiary butyl. Tertiary butyl. Okay, and last one, this free bond attached to the primary carbon atom but having a branching. लास्ट टाइम देखा जाए आप लोगों ने जो देखा तो फ्री बॉन्ड अटैच टू द प्राइमरी कार्बन एटम बट डू नॉट हैव अ ब्रांचिंग, सो इज कॉल्ड एज यन. बट फ्री बॉन्ड अटैच टू द प्राइमरी कार्बन एटम having branching, and in this branching second number is contain one methyl group is called as iso. and iso कौन सा? तो 1 2 3 4, 4 means butyl, isobutyl. So this butyl having 4 types: n butyl, secondary butyl, tertiary butyl and isobutyl. Okay, iso means n means free bond attached to the primary carbon atom having no branching. Free bond attached to the secondary carbon atom is called secondary butyl. Total number of 4 carbon atom is 4. Free bond attached to the tertiary carbon atom having 4 carbon atom, tertiary butyl, and free bond attached to the primary carbon atom having only one branching, that is second number having a 1 methyl group is called isobutyl. Okay, these are the very important structures. इसके अब लोग वैलेंसी भी कंप्लीशन कर सकते हैं, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है. वैलेंसी कंप्लीशन करने के लिए आपके पास रह गए, इसके पास 1 है तो 3 हाइड्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पास 2 हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट है, इसके पास 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, इसके पास 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट. ओके, ये होगा उसका नाम. सेकेंड, इसके पास 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, इसके पास 2, इसके पास 3 और इसके पास 1H की रिक्वायरमेंट है. इसको देखा जाए तो इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3, इसके पास 3 हाइड्रोजन, और इसके पास देखा जाए तो 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, इसके पास ओनली 1 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, इसके पास 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है और इसके पास CH2 की हाइड्रोजन की. सो दीज फंक्शनल ग्रुप्स दैट इज अल्काइल ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज butyl, n-butyl, secondary butyl, tertiary butyl and isobutyl. And last point is nothing but the pentyl. So these pentyls are very important. Pentyl, methyl only one type, ethyl only one type, propyl having 2 types, that is n-propyl, iso or secondary propyl. Butyl, butyl means 4 carbon atom, 4 types. Pentyl, pentyl means 5 carbon atom, 5 types. अब 5 types किस तरह से है देखिए, फर्स्ट कार्बन एटम 1 2 3 4 5, these are the first type. Okay, second type में जाएंगे 1 2 3 4 5, these are the second type. थर्ड टाइप में जाएंगे 1 2 3 4 5, और एक इधर मैं इधर ही लिख लेता हूँ, टोटल 5 चाहिए, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम. नेक्स्ट 1 2 3 4 एंड 5 इसी तरह से लिखेंगे, और लास्ट का जो रहेगा इज नथिंग बट द 1 2 3 4 5 इसी तरह से लिखेंगे. तो इस एक दर जैसे फर्स्ट सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप एंड फिफ्थ टाइप. इसमें देखा जाए तो 5 कार्बन एटम है, 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 5 कार्बन एटम है. बट मैंने इधर एक भी जगह इसमें एक बार भी कोई भी प्री बॉन्ड नहीं लिखा, तो 1 2 3 4 5 तो मैंने इधर प्री बॉन्ड लिखा, 1 2 3 4 5 मैंने इधर प्री बॉन्ड लिखा, 1 2 3 4 5 मैंने इधर प्री बॉन्ड लिखा. ओके, 1 2 3 4 5 मैंने इधर प्री बॉन्ड लिखा, और 1 2 3 4 5 मैंने इधर प्री बॉन्ड. अभी इसमें से देखा जाए इसकी वैलेंसी अब आप लोगों को कंप्लीशन कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इतना. इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 3 2 2 2 2, इसी तरह से आप लोग कंप्लीशन कर सकते हैं. तो इसके बाद में आप लोग देखा जाए तो इसको कहते हैं यन पेंटाइन, बिकॉज टोटल 5 कार्बन एटम हैविंग फ्री बॉन्ड, टोटल 5 कार्बन एटम हैविंग फ्री बॉन्ड इज कॉल्ड यन पेंटाइल, नो ब्रांचिंग. ओके, इज कॉल्ड एज यन पेंटाइल. समझ में आ गया? टोटल 5 कार्बन एटम हैविंग फ्री बॉन्ड without branching or straight chain is called n pentyl. N means normal chain. Second, in this atom free bond attached to the secondary carbon atom, that is total 5 carbon atom having free bond is nothing but the secondary pentyl.
is called as secondary pentyl. Next, 5-carmatum having free bond is nothing but the pentyl. In case free bond attached to the tertiary carbon atom is called as tertiary pentyl. Is called as tertiary pentyl. इसमें 1 2 3 4 5 carmatum having free bond is called pentyl, but this free bond attached to the primary carmatum having branching. फर्स्ट एग्जांपल में नो ब्रांचिंग n pentyl, but having branching, and second number having a 1 methyl group is called as isopentyl. Is called as isopentyl. और उसके बाद में लास्ट फ्री बॉन्ड अटैच टू द प्राइमरी कार्मेटम. टोटल देखा 1 2 3 4 5 कार्मेटम अपने पास है. दिस 5 कार्मेटम हैविंग फ्री बॉन्ड इज नथिंग बट द पेंटाइल, बट इन केस free bond attached to the primary carmatum and having branching, and this branching में second number having a 1 2 methyl group, so is called as nivo. So is called as nivopentyl. is called as nivo. मैं इसका नाम इधर लिख देता हूँ, nivopentyl. ठीक है. These are the very important groups. इन दिस ग्रुप अगर आपको देखा जाए तो ये अल्काइल ग्रुप आप लोगों को पता ही होने चाहिए. अल्काइल ग्रुप्स आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम अल्केन. इन केस ऑफ मिथाइल इट इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम मीथेन, सो इट कंटेन ओनली 1 कार्मेटम, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉन्ड CH3 और दिस वन. सेकेंड वन, इन केस ऑफ इथाइल हैविंग 2 कार्बोनेटम is ethane, it is mainly obtained from ethane having 2 carbonatom having free bond is ethyl. Means 2 carbonatom having free bond is called ethyl, so is represented by bond CH2 CH3 as well as C2H5. Then propyl contain 3 carbon atoms, okay, 3 types, that is N, secondary and iso. Means 2 types, propyl contain 2 types of alkyl group, that is N propyl, secondary or isopropyl. When free bond attached to the primary carbon atom having 3 carbon atom N propyl. When free bond attached to the secondary carbon atom having 3 carbon atom chain is nothing but the secondary or isopropyl. Next, in this case it is also be represented by bond C3H7 also. These are the molecular form. These are the bracket में जो लिखा है ना, these are the molecular formula. Bond CH3 molecular formula, C2H5 molecular formula, C3H7 molecular formula. ओके. C3H7 मीन्स टोटल कार्बन 3 और टोटल हाइड्रोजन देखिए इधर 3 है, इधर 3 है, टोटल 6 और बीच में 6 7 टोटल 7. इसके बाद में ब्यूटाइल. दिस ब्यूटाइल कंटेन 4 टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप. फॉर एग्जांपल फ्री बॉन्ड अटैच्ड टू द 4 कार्बन एटम अल्काइल ग्रुप्स N ब्यूटाइल, दैट इज फ्री बॉन्ड अटैच्ड टू द प्राइमरी कार्बन एटम having total number of carbon atom 4 without branching N butyl. Free bond attached to the secondary carbon atom, total 4 carbon atom is called secondary butyl. Free bond attached to the tertiary carbon atom, structure में total 4 carbon atom है, tertiary butyl. And free bond attached to the primary carbon atom having branching and second number having a 1 methyl group is called isobutyl. Okay, these are the 4 important types. And this pentyl is nothing but the total 5 types. First, N pentyl, free bond attached to the primary carbon atom without branching having straight chain. Second, 5 carbon atom with free bond, and this free bond attached to the secondary carbon atom, secondary pentyl. 5 carbon atom having free bond, this free bond attached to the tertiary carbon atom, tertiary pentyl, and free bond attached to the primary carbon atom having 2 carbon atom, that is nivopentyl, and free bond attached to the primary having only one, that is iso, second number having a 1 methyl group is nothing but the isopentyl. They total आप जो 13 carbon atoms है. These are the very important according to CET, NEET, JEE level also as well as state board and CET. ये हम लोगों को 11th और 12th दोनों ईयर के लिए इम्पोर्टेंस है. ये बेसिक आप लोगों को पता ही होना चाहिए. ओके, थैंक यू वेरी मच.